g'irt dangasa bo'lsang ham shunaqa ishlarni boplaysan. Kalit qani? Qayerga? Bugundan men biznes lediman. Ruxsat bersangiz, oldin salonga borib, keyin borsam degandim. O'zim bilaman nima qilishni. Qanaqa kelin olish. Sekinroq gapir. Nimaga chaqirdingiz? Chol seyfni ochdi. Zo'r-ku. Bobojon. Ey bolajonlarim. Bobojon, yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. To'polonchilar. Ana, oyingga qaranglar. Qani? Tez kiyimlarni alishtiringlar-chi. Bo'linglar, bo'la qolinglar. Uyqum kelmadi. Nimaga uxlolmaysiz? Qanaqa qilib qo'limizdagini cholga yetkazishni o'yladim. Oddiygina shuni olib borib berib, mana ko'r, xotinning eri deymizmi? Shundoq zarba berish kerakki, Zarbani Saidni o'zi beradi. Basharasiga otib ketish kerak. Mana shu dalil isbotda o'zi yetadi. Men ham boramanmi? shart emas. Yaxshi. Dada, nonushtangizni tayyorlab qo'yganman. Choy ichib olarsiz. Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Bo'pti. Yo'lda ehtiyot bo'l. Mayli. Mana buni senga olgandim. Boshqasiga emas-ku. Sizni bilib bo'ladimi? Bilasizmi? Kechirim so'ramaysizmi? Buni senga oldim. Meni kechir deb bundoq tiz cho'kib, a? Olmayman. Men yosh yigitmanmi senga romantika qilib keladigan? Qilgan ishingiz nima u? Boyim, Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlikmi? O'zingiz kecha alohida yashash shartini qo'ygandingiz bonu. ha, bilaman. Lekin Oldin bitta chiroyli choyingizdan damlang. xo'p. Boringizga shukr. Rahmat. Siz yaxshi ko'radigan o'tli damlama. Bo'ldi. Choyni sirini hech aytmadingiz-da. Qolganini keyin aytaman. Men ilonman. Oq ilon. Ana qo'shuq bor-ku. Joylari bormi? Shunaqa. Mana shu gapni bonu to'g'ri gapirdingiz. Seyfdagilarni nima qilasiz? Dunyo kezamiz, chet ellarga, dengizlarga. Umringizda ko'rmagan Tushunarli. Fleshkada ham bir ikkita videolari bor ekan. Mana shuni cholga qanaqa ko'rsatishni o'ylayapman. Uni ofisiga olib borib bering, bo'ldi, masala hal. Siqilishini xohlayman. Ana shuni o'ylab o'tiribman. Yolg'onchi aferistligini bilib qo'ysin. Balki u Bilmaydi. Biz mana shu yolg'onni fosh qilishimiz kerak. bo'ldi, o'ylab topamiz. ड्रामा सीरियल में हम ये देखने वाले हैं, एक लड़का अपनी वालदा की आंखों के ऊपर हाथ रख कर खड़े होता है, दूसरी जानिब उसका बाप जो है वो काम कर रहा होता है घर की सेटिंग, क्योंकि आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ होने वाला था। उनके घर में एक बहुत ही मेहमान आने वाले थे जिसकी खुशी वो उसकी वालदा को देना चाहता था, उनको सरप्राइज़ देना चाहता था, और उसका वालिद भी इसी कोशिश में लगा रहता है कि कुछ सफाई कर ली जाए घर की। ऐसे में हम देखते हैं कि जब वो उसकी आंखें छोड़ता है तो नाज़रीन हम उसके सामने देखते हैं कि उसकी बेटी आ जाती है, जो कि बहुत ही कई दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और जैसे ही उसकी वालदा अपनी बेटी को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसका बेटा जो है वो अपने बाप के साथ कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि आप अकेले ही लगे हुए हैं, मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे कोई काम ही नहीं कहते। लड़का अपने बाप की बहुत ही अहमियत चाहता है और उनको बता रहा होता है कि मैं आपसे काम करवा सकता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मुझे काम बताएं मैं क्या करूँ। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो लड़की है वो नाज़रीन
अपनी वालदा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसकी वालदा भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो 1-2 मिनट तो पहले एक दूसरे को देखती ही रहती हैं। जब वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख लेती हैं तो वो गले लग जाती हैं और रोने लग पड़ती हैं। लड़की उसके बाद कहती है कि वालदा मैं अब बिल्कुल भी ठीक हूँ, आपको रोने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक होकर वापस आई हूँ। ऐसे में वो उसकी वालदा जो है वो कहती है कि तुम पहले भी मुझे ऐसे ही कह चुकी हो, लेकिन मैं अब क्या करूं, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, तुम्हें ये बीमारी लग कहाँ से गई। ऐसे में वो कहती है कि चलो छोड़ो, अब वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई जाती है उसकी वालदा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसका बेटा है वो अपनी वालदा को बता रहा होता है कि अम्मी जान अब कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि ये बिल्कुल भी ठीक है। तो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये बात सुनकर। उसका बाप और जो बेटा है वो नाजरीन उनकी खुशामद के लिए बहुत ही ज़्यादा रूम को सजा रहे होते हैं और साथ ही मेहनत कर रहे होते हैं। और वो लड़की जो है वो नाजरीन ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग पड़ती है। ऐसे में हम ये देखते हैं जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और अपने बाप को बार बार देख रही होती है और उसका बाप जो है वो भी अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। और उसकी वालदा जो है वो नाजरीन हमें दिखाई जाती है कि दोनों आपस में कह रहे होते हैं कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं जो लड़का है वो नाजरीन अपनी वालदा को बताता है कि अम्मी जान अब मेरा भी जाने का वक्त हो चुका है, मैंने अब अपने काम के लिए जाना है तो मुझे इजाज़त दे दें। उसकी बहन ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है कि नहीं भाई अभी आपने नहीं जाना क्योंकि अभी घर में बहुत ज़्यादा काम है और मैं अभी आई हूँ, तो मेरा भी कुछ ख्याल करो, मेरे ख्याल करने वाला अब यहाँ पर आप ही हो। मैं अपनी अम्मी को तो ये बात नहीं कह सकती कि मेरे लिए पानी दो। ऐसे में वो आगे से खुश होता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर ही हूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं जो नाजरीन उसकी वालदा है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ठंडा सांस लंबा सांस लेती है और कहती है शुक्र है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। ऐसे में उसकी बेटी बार बार बोल रही होती है कि अम्मी जान अब बस भी करें, मैं अब घर आ चुकी हूँ, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी और कहीं भी नहीं जाऊँगी। दूसरी जानिब उसके बाद हम ये देखते हैं उसके एक वो औरत को हमें दिखाया जाता है जो कि अपने शोहर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि मेरी बात सुनो, मैंने अब तुम्हारे साथ और वक्त नहीं गुजारना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, हमारी बनती ही नहीं है, हर रोज़ एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है, तो मुझे प्लीज़ अब अपने घर में जाने दो। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि तुम्हें परेशानी किस बात की है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो फिर भी उसे यकीन नहीं आता, वो बार बार यही कह रही होती है नहीं मैंने अब अपने घर में कॉल कर दिया है तो वो मुझे अब लेने आ रहे हैं, आप अब टेंशन ना लें, मैं यहाँ से जल्दी जाने वाली हूँ, तुम्हारी जान छोड़ने वाली हूँ। ऐसे में वो गंजा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका और दे दो। वो अपने बच्चों को बता रही होती है कि अब आप लोगों ने भी मेरे साथ ही जाना है, अगर अपने बाप के पास रहना है तो मुझे अभी बता दो, वहाँ पर जाकर रोना नहीं है। वो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और उसका बाप जो है वो नाजरीन उसका शोहर वहाँ पर खड़ा ये सब मंजर देख रहा होता है कि ये करना क्या चाहती है। वहाँ से वो जाने की तैयारी कर लेती है और उसे कहती है कि अब मुझे छोड़ दो, मैं आपको छोड़ने वाली हूँ, आखिरी बार मुझे देख लो। ऐसे में वो नाजरीन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ऑफिस में एक लड़की काम करती थी वो अपने बॉस के घर में जाकर उसे कुछ चाय के अंदर मिलाकर दे देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक बिस्तर के ऊपर सोफ़े के ऊपर सोया हुआ लगता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है। वहाँ से उसने उसके घर से बहुत ही कीमती चीज़ चुरानी होती है, जिसकी वजह से वो उसे चाय तो पिलाती है लेकिन चाय में कुछ मिला देती है और मिलाने के बाद जब हम ये देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है तो वो लड़की वहाँ से उठकर जाने लगती है और एकदम से वो उठकर बैठ जाता है और लड़की जो है वो शातिर होती है, वो उसे और चाय दे देती है और कहती है कि अभी ये चाय पिए, अभी आपको सुकून नहीं आया। वो भी पागल जो बॉस है उसको भी इस बात की समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या करना चाह रही है। जब वो चाय पीता है तो नाजरीन वो कहता है ये तो बहुत ही
ज़्यादा मज़ेदार और लजीज चाय है, ये कहाँ से तुमने बनानी सीखी। ऐसे में लड़की जो है वो अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन में सोच रही होती है कि एक बार तुम ये चाय पी लो, उसके बाद तुम गहरी नींद में सो जाओगे और मैं अपना मकसद पूरा कर कर जहाँ से चली जाऊँगी। ड्रामा सीरियल में हम ये देखने वाले हैं, एक लड़का अपनी वालदा की आंखों के ऊपर हाथ रख कर खड़े होता है, दूसरी जानिब उसका बाप जो है वो काम कर रहा होता है घर की सेटिंग, क्योंकि आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ होने वाला था। उनके घर में एक बहुत ही मेहमान आने वाले थे जिसकी खुशी वो उसकी वालदा को देना चाहता था, उनको सरप्राइज़ देना चाहता था और उसका वालिद भी इसी कोशिश में लगा रहता है कि कुछ सफाई कर ली जाए घर की। ऐसे में हम देखते हैं कि जब वो उसकी आंखें छोड़ता है तो नाज़रीन हम उसके सामने देखते हैं कि उसकी बेटी आ जाती है जो कि बहुत ही कई दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और जैसे ही उसकी वालदा अपनी बेटी को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका बेटा जो है वो अपने बाप के साथ कुछ काम करवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि आप अकेले ही लगे हुए हैं, मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, आप मुझे कोई काम ही नहीं कहते। लड़का अपने बाप की बहुत ही अहमियत चाहता है और उनको बता रहा होता है कि मैं आपसे काम करवा सकता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप मुझे काम बताएं मैं क्या करूँ। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो लड़की है वो नाज़रीन अपनी वालदा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसकी वालदा भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो 1-2 मिनट तो पहले एक दूसरे को देखती ही रहती हैं। जब वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख लेती हैं तो वो गले लग जाती हैं और रोने लग पड़ती हैं। लड़की उसके बाद कहती है कि वालदा मैं अब बिल्कुल भी ठीक हूँ, आपको रोने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो के वापस आई हूँ। ऐसे में वो उसकी वालदा जो है वो कहती है कि तुम पहले भी मुझे ऐसे ही कह चुकी हो, लेकिन मैं अब क्या करूं, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, तुम्हें ये बीमारी लग कहाँ से गई। ऐसे में वो कहती है कि चलो छोड़ो, अब वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई जाती है उसकी वालदा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसका बेटा है वो अपनी वालदा को बता रहा होता है कि अम्मी जान अब कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि ये बिल्कुल भी ठीक है। तो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है ये बात सुनकर। उसका बाप और जो बेटा है वो नाज़रीन उनकी खुशामद के लिए बहुत ही ज़्यादा रूम को सजा रहे होते हैं और साथ ही मेहनत कर रहे होते हैं, और वो लड़की जो है वो नाज़रीन ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग पड़ती है। ऐसे में हम ये देखते हैं जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और अपने बाप को बार बार देख रही होती है, और उसका बाप जो है वो भी अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। और उसकी वालदा जो है वो नाज़रीन हमें दिखाई जाती है कि दोनों आपस में कह रहे होते हैं कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं जो लड़का है वो नाज़रीन अपनी वालदा को बताता है कि अम्मी जान अब मेरा भी जाने का वक्त हो चुका है, मैंने अब अपने काम के लिए जाना है तो मुझे इजाज़त दे दें। उसकी बहन ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है कि नहीं भाई अभी आपने नहीं आना, क्योंकि अभी घर में बहुत ज़्यादा काम है और मैं अभी आई हूँ, तो मेरा भी कुछ ख्याल करो, मेरे ख्याल करने वाला अब यहाँ पर आप ही हो। मैं अपनी अम्मी को तो ये बात नहीं कह सकती कि मेरे लिए पानी दो। ऐसे में वो आगे से खुश होता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर ही हूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं जो नाज़रीन उसकी वालदा है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और ठंडा सांस लंबा सांस लेती है और कहती है शुक्र है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। ऐसे में उसकी बेटी बार बार बोल रही होती है कि अम्मी जान अब बस भी करें, मैं अब घर आ चुकी हूँ, अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी और कहीं भी नहीं जाऊँगी। दूसरी जानिब उसके बाद हम ये देखते हैं उसके एक वो औरत को हमें दिखाया जाता है जो कि अपने शोहर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि मेरी बात सुनो, मैंने अब तुम्हारे साथ और वक्त नहीं गुजारना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, हमारी बनती ही नहीं है, हर रोज़ एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है, तो मुझे प्लीज़ अब अपने घर में जाने दो। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि तुम्हें परेशानी किस बात की है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो फिर भी उसे यकीन नहीं
नहीं आता। वो बार बार यही कह रही होती है, नहीं मैंने अब अपने घर में कॉल कर दिया है तो वो मुझे अब लेने आ रहे हैं, आप अब टेंशन ना लें, मैं यहाँ से जल्दी जाने वाली हूँ, तुम्हारी जान छोड़ने वाली हूँ। ऐसे में वो गंजा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका और दे दो। वो अपने बच्चों को बता रही होती है कि अब आप लोगों ने भी मेरे साथ ही जाना है, अगर अपने बाप के पास रहना है तो मुझे अभी बता दो, वहाँ पर जाकर रोना नहीं है। वो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और उसका बाप जो है वो नाज़रीन उसका शौहर वहाँ पर खड़ा ये सब मंजर देख रहा होता है कि ये करना क्या चाहती है। वहाँ से वो जाने की तैयारी कर लेती है और उसे कहती है कि अब मुझे छोड़ दो, मैं आपको छोड़ने वाली हूँ, आखिरी बार मुझे देख लो। ऐसे में वो नाज़रीन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ऑफिस में एक लड़की काम करती थी वो अपने बॉस के घर में जाकर उसे कुछ चाय के अंदर मिलाकर दे देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक बिस्तर के ऊपर सोफ़े के ऊपर सोया हुआ लगता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है। वहाँ से उसने उसके घर से बहुत ही कीमती चीज़ चुरानी होती है, जिसकी वजह से वो उसे चाय तो पिलाती है लेकिन चाय में कुछ मिला देती है और मिलाने के बाद जब हम ये देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है तो वो लड़की वहाँ से उठकर जाने लगती है और एकदम से वो उठकर बैठ जाता है और लड़की जो है वो शातिर होती है, वो उसे और चाय दे देती है और कहती है कि अभी ये चाय पिए, अभी आपको सुकून नहीं आया। वो भी पागल जो बॉस है उसको भी इस बात की समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या करना चाह रही है। जब वो चाय पीता है तो नाज़रीन वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज चाय है, ये कहाँ से तुमने बनानी सीखी। ऐसे में लड़की जो है वो अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन में सोच रही होती है कि एक बार तुम ये चाय पी लो, उसके बाद तुम गहरी नींद में सो जाओगे और मैं अपना मकसद पूरा कर जहाँ से चली जाऊँगी।